فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ چار مینار کو تلنگانہ کے لوگو میں برقرار رکھا جائے۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے نئے لوگو کے لیے مشہور شخصیات سے تبادلہ خیال بھی کیا، تاہم نئے لوگو کی نقاب کشائی کو حکومت کی جانب سے فی الحال ملتوی کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ BRS کے دور حکومت میں تلنگانہ کے لوگو میں کاکتیہ کمان اور چار مینار ہے۔ کانگریس حکومت چاہتی ہے کہ نئے لوگو میں کاکتیہ کمان اور چار مینار کو ہٹا دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر ایک نئے لوگوں کی تصویر بھی وائرل ہو رہی، جس میں کاکتیہ تورانم اور چار مینار کی جگہ شہداء کا استوپا نصب ہے۔ AIMIM نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا اور لکھا کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ چار مینار کو تلنگانہ کے ریاستی لوگو میں برقرار رکھا جائے۔ یہ تلنگانہ کی مجموعی ثقافت کی طویل تاریخ کی علامت ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ حکومت نے تلنگانہ کے ریاستی ترانے کے طور پر جیا جیا ہے تلنگانہ کو منظوری دے دی ہے۔ اس سال 2 جون کو تشکیل تلنگانہ کے 10 سال کی تکمیل کے موقع پر تقاریب کو شایان شان طریقے سے منعقد کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہی تقاریب کے دوران جیا جیا ہے تلنگانہ ترانے کو عوام کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تحریک کے دوران تلنگانہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے اس گیت کو سبھی کی منظوری سے ریاستی ترانے کے طور پر قبول کیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں۔ تلنگانہ کے نامور تیلگو شاعر اور مصنف اندیسری نے کہا ہے کہ 20 سال قبل لکھا گیا اس گیت کو بنا کسی تبدیلی قبول کر لیا گیا ہے۔ اس نغمے کے لیے آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقی کار MM کیروانی نے موسیقی کے ساتھ ساتھ آواز بھی دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ کل جماعتی قائدین کے اجلاس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، قانون ساز کونسل چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار، وزراء اتم کمار ریڈی اور دیگر موجود رہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے عثمانیہ ٹیکنالوجی اینڈ بزنس انکیوبیشن نے RSI کے ساتھ شراکت داری کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ایک معروف کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سائبر سیکیورٹی اسٹارٹ اپ ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ٹیک سمٹ 2024 کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تقریب میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں کاروبار کو نفع بخش بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس نے RSI کی لیوریجن کے عزائم کو اجاگر کیا گیا، جو جدید ترین کلاؤڈ سروس اور مضبوط سائبر سیکیورٹی ترقی کو آگے بڑھانے اور کلائنٹس کے لیے آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ ان جدید ترین کلاؤڈ نظام کو اختیار کرتے ہوئے مسائل کا حل اور متنوع ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل کے اراکین نے صحت عامہ کے تحفظ کے مقصد سے خود ساختہ ڈاکٹرز کی سرگرمیوں پر بڑھتے ہوئے خدشات کو دور کرنے کے لیے مختلف اضلاع میں اچانک معائنے کیے۔ ایسے علاقوں میں جہاں اہل طبی پریکٹیشنرز کی کمی ہے، کونسل نے نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ کے دفعات کو سختی سے نافذ کر رہا غیر مجاز پریکٹیشنرز کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے۔ اس جانچ کے دوران تلنگانہ میڈیکل کونسل کے دائرہ کار میں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز RMP یا پرائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنرز PMP کے طور پر پریکٹس کرنے والے 55 افراد NMC ایکٹ کی دفعہ 3454 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ غیر مجاز پریکٹیشنرز اینٹی بایوٹکس، اسٹیرائڈ انجیکشن، بعض مراکز میں معائنہ حمل گولیاں تجویز کرتے ہیں اور خفیہ آپریشن تھیٹرز میں آپریشن انجام دیتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر G سرینواس، نائب صدر تلنگانہ میڈیکل کونسل، ڈاکٹر شیشو مادھو، قانونی امور کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سریکانت، FMG کے چیئرمین ڈاکٹر نریش کمار، پبلک ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین، فائنانس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر روی کمار، AC ممبران ڈاکٹر وشنو، ڈاکٹر عمران علی، معاون ممبران و دیگر اس دوران موجود تھے۔
गोशा महल के रुकने असम्बली और बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को नामालूम नंबरों से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने कहा है कि साबिक़ में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हुकाम की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें मायूसी हुई है। राजा सिंह ने कहा है कि उन्होंने पहले भी पुलिस में इन धमकियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, ताहम इस मामले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने धमकियों के स्क्रीनशॉट्स को बतौर सबूत पेश करते हुए कहा है कि बीजेपी एमएलएस ने वज़ीर दाखिला से भी दरख्वास्त की थी। उन्हें साबिक़ में कहा गया था कि तेलंगाना के डीजीपी को मकतूब तहरीर करें और इस मामले पर तवज्जो दिलाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजा सिंह ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि एक बार फिर मुझे मुतअद्दिद नंबरों से जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। ये पहली बार नहीं कि मुझे इस तरह की धमकियों का निशाना बनाया गया। पिछली शिकायत के बावजूद ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहरहाल एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जाना अपना फर्ज समझता हूँ कि कार्रवाई की जाएगी या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है और मजीद कहा गया है कि स्टेशनरी और किताबें बगैर मुनाफे के फरोख्त की जा सकती हैं। वाज़े किया गया है कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने यह अहकाम जारी किए। हैदराबाद ज़िले में प्राइवेट स्कूलों CBSE ICSE अहाते में अब यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट फरोख्त नहीं किए जा सकते हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक अगर स्कूल काउंटर पर किताबें, नोटबुक और स्टेशनरी की फरोख्त हो तो वो गैर तिजारती और गैर मुनाफा बख्श होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ओहदेदारों को प्राइवेट स्कूलों की बाकायदा निगरानी के लिए मंडल सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने वाज़ेह किया है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट वगैरह की फरोख्त ना की जाए। अगर क़वाइद की खिलाफ वर्जी होती है तो उसे फौरी तौर पर उनके इल्म में लाया जाए। तेलंगाना की यौम तासीस की 10वीं तकारीब से आइन क़ब्ल तेलंगाना के नए सरकारी निशान एम्बलम की तैयारी के ताल्लुक से रियासत की कांग्रेस हुकूमत के इक़दाम पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। रियासत की अहम अपोजिशन BRS ने हुकूमत से इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म करने की धमकी दी। रियासत की यौम तासीस तकरीब 2 जून को मुकर्रर है। इस तकरीब में हुकूमत तेलंगाना नए सरकारी निशान की नकाब कुशाई करने का मनसूबा रखती है। हुकूमत का कहना है कि मौजूदा सरकारी निशान काकतिया कलातुरानम काकतियाओं की खैर मख्तमी कमान और चार मीनार जागीरदाराना और आमराना दौर के अक्कास हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि कई दहाइयों की तेलंगाना तहरीक पर मुश्तमिल नया सरकारी निशान होना चाहिए। इस मुजव्वज़ा निशान से तेलंगाना तहरीक की झलक दिखाई दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नए सरकारी निशान को हतमी शक्ल दे दी है, जिसे मशहूर फनकार रुद्र राजेश्यम ने डिजाइन किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार MM किरवानी को रियासत के तराने को कंपोज करने का टास्क दिया है। कर्नाटक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने हासन के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवना को म्यूनिख से बेंगलुरु के कैंपेगुड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के फौरन बाद हिरासत में ले लिया। 33 साला प्रज्वल रेवना को जिनसी इस्तेसाल के मुतअद्दिद इल्जामात का सामना है और उसे तकरीबन हिरासत में लिया गया। उसे पूछताछ के लिए CID के दफ्तर ले जाया गया। होडी पहनकर बेंगलुरु वापस लौटने वाले प्रज्वल रेवना को सेक्स स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के 1 माह बाद हिरासत में गया। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया और बाद में SIT के हवाले कर दिया। प्रज्वल को बहिफाजत थाने ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी देखी गई। इसके खिलाफ अदालती वारंट ज़ेर इल्तवा था और जरूरी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद उसे सरकारी तौर पर SIT की तहवील में रखा गया है।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बरतानिया के वॉल्ट से 100 टन सोना हिंदुस्तान वापस मंगा लिया है। इसका मकसद सोना जमा करने की लागत को कम करना था। ये इतला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। 1991 के बाद ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी मकदार में सोना बैरून मुल्क से हिंदुस्तान वापस लाया गया है। वजीर आजम की इख्तिसादी मशावरती कमेटी के रुकन और माहिर इख्तिसादियात संजीव सानियाल ने कहा है कि आरबीआई ने 100 टन सोना बरतानिया से हिंदुस्तान मुंतकिल किया है। उनका मजीद कहना था कि कई ममालिक की जानिब से बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट में सोना रखा जाता है, इसके लिए फीस भी अदा की जाती है। हिंदुस्तान अब अपना ज्यादातर सोना अपने पास रखता है। 1991 में बहरान के दौरान हमें अपना सोना बैरून मुल्क गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन अब हम वहां से बहुत आगे निकल चुके हैं। मुल्क 1991 में जब बहरान का शिकार था और दरामद के लिए पैसे नहीं थे, तो उस वक्त की चंद्रशेखर हुकूमत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में 46.91 टन सोना गिरवी रखकर $400 मिलियन कर्ज लेने का फैसला किया था। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक के पास 31 मार्च 2024 तक 822.10 टन सोना है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में ये तादाद 794.63 टन थी। सलाम एयर, जो कि ओमान की तेजी से तरक्की करती हुई एयरलाइन है, उसने अपने नए रूट के हवाले से ऐलान किया है। एयरलाइन की जानिब से अपने एक बयान में कहा गया है कि वो दिल्ली इंडिया से अपने नए रूट का आगाज करने के लिए पुरजोश है। 2 जुलाई 2024 से सलाम एयर भारत से हफ्ते में 2 बार मंगल और जुमेरात को अपनी परवाजें ऑपरेट करेगा। सलाम एयर चूंकि सस्ती और आसान सफरी सहूलियात की मांग को पूरा करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कोशां है, इसलिए दिल्ली से मस्कत के लिए परवाजें मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। कायम मुकाम सीईओ कैप्टन अहमद अल शेदानी का कहना है कि हम भारत में अपने बढ़ते हुए सफरी रूट की फहरिस्त में दिल्ली को शामिल करने पर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली अजीम तारीखी और इख्तिसादी अहमियत का हामिल शहर है और यह हमारे नेटवर्क में एक मिसाली इजाफा है। हम अपने मुसाफिरों को इस शहर की सैर करने के मौके फराहम करने के मुंतजर हैं। हम मुसाफिरों को आला दर्जे की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि मुसाबिकती कीमतों पर उन्हें मियारी सफर का तजुर्बा फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दोबारा पोलिंग कराने से मुतल्लिक इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें बिहार के मोंगेर पार्लिमानी हलके के कई पोलिंग स्टेशनों के बूथों पर मुबैना तौर पर कब्जा करने और कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वोट डालने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए उन बूथों पर दोबारा पोलिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की गुजारिश की गई थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस परसना बी वर्ले की तातीलाती बेंच ने दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और उसे खारिज करते हुए इस मामले पे पटना हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा। बेंच ने अर्ज गुजार कुमारी अनीता की जानिब से इस मामले में पटना हाई कोर्ट में पहले अपनी शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन न अपनाने पर अपना एतराज जाहिर किया। जस्टिस शर्मा की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि हाई कोर्ट से रुजू किए बगैर आप उसे कसूरवार ठहरा रहे, बराए करम वहाँ यानी कि हाई कोर्ट जाएं। अदालत उज़्मा के इस मौक़िफ़ के बाद दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे कबूल कर लिया गया। बेंच ने अपने हुक्म में कहा है कि मौजूदा अर्जी को वापस लेने के तौर पर खारिज कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मक्का मुकर्रमा में गैर कानूनी दाखिले पर सजा का निफाज 2 ता 20 जून होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मक्का मुकर्रमा या मशाइर मुक़द्दसा में दाखिला गैर कानूनी हज शुमार होगा। 10,000 रियाल जुर्माना होगा। गैर मुल्की को बेदखल करके ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि बगैर इजाज़तनामा आज़मीन को मक्का ले जाने पर 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि बगैर इजाज़तनामा आज़मीन को मक्का ले जाने वाले की गाड़ी भी जब्त की जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.